جو نشے کی حالت میں آج اپنی ماں کو مارتے ہیں, یہاں تک اس کا قتل ہی کر ڈالتے ہیں. میں ان نافرمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ان کی ماں کا بلڈ پریشر آج کنٹرول میں نہیں رہتا. میں ان احسان فراموشوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے کچھ پیسے کیا کمانا شروع کیے کہ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم پہنچا دیا. میں ان بد کرداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن کی بد کرداری کی وجہ سے ان کی ماں کی گردن آج شرم سے جھک جاتی ہے. اگر ابھی بھی آپ کو اپنی ماں کی قربانیوں کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, آج میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں, آج میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں. آج جاؤ اب اپنی اس ماں کے پاس جس کے ساتھ آپ نے ترک تعلق کر کے رکھا ہوا ہے اور پوچھو اس ماں سے. پوچھنا کیا ہے, اس ماں کا یہ فراق اوپر اٹھا کے دیکھو, اس ماں کا یہ فرن اوپر اٹھا کے دیکھو, اپنے اس ماں کے اس پیٹ کو دیکھو, اس چھاتی کو دیکھو اور پھر پوچھنا ارے ماں آپ کی اس پیٹ میں یہ جھلیاں کیسے آ گئی ہے. تو ماں جواب دے گی, اس جواب کو غور سے سنیے گا. ماں کہے گی بیٹا خوبصورت تو میں بھی ہوا کرتی تھی, جوان تو میں بھی ہوا کرتی تھی, اپنی فکر پہ فخر تو مجھے بھی ہوا کرتا تھا, لیکن کیا کروں تیرا تو پیٹ میں پڑ رہا تھا, تیرے جنم کے چکر میں میرے پیٹ کو چیرنا پڑ گیا تھا. تیری پرورش کرتے کرتے تیرا خیال رکھتے رکھتے میں اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھی. شاید تب آپ کو یہ احساس ہو جائے, شاید تب آپ کا ضمیر جاگ جائے کہ ہاں یہ وہی ہستی ہے جس نے اگر مجھ سے میرے بچپن میں جب میں 2-4 مہینے کا تھا مجھ سے اگر کچھ لمحوں کے لیے توجہ ہٹا دی ہوتی تو میرا دی اینڈ اسی وقت. یہ دونوں پہلے ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے, دونوں الگ الگ بستی کے رہنے والے, دونوں کے خاندان الگ, دونوں کی جو فیملی ہے اس کا کلچر الگ, دونوں کے مزاج مختلف, دونوں کی پسند ناپسند مختلف. غرض ان دونوں کی زندگی کو اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے 100% میچ نہیں کرتے. قدرت کا ایک قانون ہے, جب ایک لڑکا یا لڑکی ایک اڈلٹ عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو شادی کرنا ان کے لیے ایک کائنڈ آف ضروری چیز بن جاتا ہے, فیو ایکسیپشن اس کو چھوڑ کے. تو ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے, لیکن شادی کے اس خوبصورت بندھن میں بندھنے کے لیے اگر سب سے زیادہ قربانی کسی کو دینی پڑتی ہے تو وہ ہوتی ہے حلیمہ. حلیمہ جس نے زندگی کے 25-30 سال اپنے گھر میں گزارے, اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے, جس گھر میں جوان ہوئی, جس گھر کی دیواروں پہ اس کی پسند کا پینٹ لگا ہوا ہے, جس گھر کی میٹنگ اس کی پسند کی خریدی گئی ہے, جس گھر کے برتن اس کی چوائس سے خریدے گئے تھے, اچانک سے اس گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. جس گھر کو 25-30 سال تک اپنے ہاتھوں سے مینٹین کیا تھا, جس گھر کو بڑے پیار سے بڑی محنت و مشقت سے اپنے لیے جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا لیا تھا, آل آف اے سڈن اس گھر کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر ایک بس کچھ جوڑے کپڑے, تھوڑے سے زیور اور کچھ یادوں کے ساتھ ایک دوسرے گھر میں آنا پڑ رہا ہے. یہ حلیمہ کی, یہ ہماری بہن کی, یہ ہماری بیٹی کی, یہ ہمارے معاشرے کی لڑکی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. اب شادی کے بعد یہ جو اس نئے گھر میں آتی ہے, اس نئے گھر کا ماحول الگ, اس نئے گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان کے مزاج مختلف, اس نئے گھر کا کلچر الگ. غرض اس کے پاس بس ایک چوائس رہتی ہے, اب اس کو اس نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہتا. آہستہ آہستہ یہ خود کو اس نئے گھر میں, اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ تو کرتی ہے, لیکن ڈیپ انسائیڈ کہیں نہ کہیں اپنی پہلی فیملی کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوتی ہے. قدرت کا ایک عجیب نظام ہے, قدرت کی طرف سے اس کے اندر ایک عجیب و غریب سٹرینتھ آ جاتی ہے, اس کے صبر کا پیمانہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب یہ خوشی خوشی
अपने शौहर अब्बास के सपोर्ट के साथ इस नए घर में रहने लगती है। शादी के बाद हर कपल की और इन दोनों की भी बस एक अब सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रहती है कि कब इनके यहां एक बच्चा हो जाए। बहरहाल एक दिन आता है, इनको ये खुशखबरी मिल जाती है, हलीमा अब्बास अब वालिदैन बनने वाले हैं। इस ओकेजन को, इस खुशखबरी को वो सेलिब्रेट करते हैं। हलीमा जो पहले किसी की बेटी थी, जो पहले किसी की बहन थी, फिर किसी घर की बहू बनी, फिर किसी अनजान इंसान की बीवी बनी और अब फाइनली एक मां बनने वाली है। लेकिन मां बनना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। अब मां बनने के लिए इसे अब मजीद कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अब इसके जिस्म में तब्दीलियां आने लगती है, इसका मिजाज बदलने लगता है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो पूरी बदलने लगती है। और यही से हलीमा का, यही से हमारी बहन का, यही से हमारी बेटी का, यही से हमारी बीवी का, यही से हमारे मुआशरे की लड़की का एक की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है, एक मां का सफर। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं कौम के इस मीडिया के जरिए मैं कौम के भाइयों और बहनों को एक रिमाइंडर देना चाहता हूं। मैं उन जवानों को यह रिमाइंडर देना चाहता हूं जो अपनी मां पे आज जुल्म करते हैं। मैं नशे में चूर उन नशेड़ियों को यह बताना चाहता हूं जो नशे की हालत में आज अपनी मां को मारते हैं, यहां तक उसका कत्ल ही कर डालते हैं। मैं उन नाफरमानों को यह बताना चाहता हूं जिनकी वजह से उनकी मां का ब्लड प्रेशर आज कंट्रोल में नहीं रहता। मैं उन एहसान फरामोशों को यह बताना चाहता हूं जिन्होंने कुछ पैसे क्या कमाना शुरू किए कि अपनी मां को ओल्ड एज होम पहुंचा दिया। मैं उन बदकिरदारों को यह बताना चाहता हूं जिनकी बदकिरदारी की वजह से उनकी मां की गर्दन आज शर्म से झुक जाती है। मैं उन लापरवाहों को यह बताना चाहता हूं जो अपनी लापरवाही की वजह से बाइक स्टंट्स के चक्कर में अपनी कीमती जान जाया कर देते हैं। मैं उन दानिशमंदों को यह बताना चाहता हूं जिनके सामने अब उनकी मां की राय कोई मतलब नहीं रखती। मैं उन ओहदेदारों को यह बताना चाहता हूं जो अब अपनी मां को अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराने में शर्म महसूस करते हैं। मैं उन मॉडर्न लोगों को यह बताना चाहता हूं जिनको अपनी मां अब आउटडेटेड दिखती है। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, क्या है आपका वजूद? किस चीज पे इतना तकब्बुर और किस चीज पे इतना घमंड हो रहा है? ठीक है, मानता हूं आज आपके बाजुओं में ताकत आ गई, आज आप जवान हो गए, आज आप खुद खा पी सकते हैं, आज आप खुद कुछ पैसे कमा सकते हैं, आज आप जवान हैं, आज आपके पास आपकी अपनी बीवी आ गई, अपने बच्चे आ गए, आज आपके पास एक ओहदा आ गया, एक पैसा कमाने की सलाहियत आ गई, आज आप खुद को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक मिनट के लिए भी कभी आपने अपनी जिंदगी पे, अपने वजूद पे गौर किया है? क्या एक मिनट के लिए भी आपने अपने वजूद के बारे में सोचा है? आप इस जवानी के पीछे, आप इस जवानी पे जितना ये फख्र और तकब्बुर करते हैं, इस जवानी के पीछे क्या किसी ने अपनी जवानी कुर्बान नहीं की थी? क्या आपकी मां जवान नहीं थी? क्या आपकी मां खूबसूरत नहीं थी? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर अभी भी आपको अपनी मां की कुर्बानियों का एहसास नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आज मैं आपको एक टास्क देता हूं। आज जाओ अब अपनी उस मां के पास जिसके साथ आपने तर्क ताल्लुक करके रखा हुआ है। जाओ आज अपनी उस मां के पास जिसके साथ आप कई दिनों से, कई महीनों से बात नहीं कर रहे हो। जाओ आज आप अपनी उस मां के पास जिसको आपने ओल्ड एज होम पहुंचा दिया है। जाओ आज आप अपनी उस मां के पास जिसको आप, जो अभी आपके सामने आउटडेटेड दिखती है, और पूछो उस मां से। पूछना क्या है? उस मां का ये फिराक ऊपर उठा के देखो, उस मां का ये फेरन ऊपर उठा के देखो, अपने उस मां के इस पेट को देखो, इस छाती को देखो, और फिर पूछना, अरे मां आपकी इस पेट में ये झुर्रियां कैसे आ गई है? तो मां जवाब देगी। उस जवाब को गौर से सुनिएगा। मां कहेगी, बेटा खूबसूरत तो मैं भी हुआ करती थी, जवान तो मैं भी हुआ करती थी, अपनी फिगर पे फख्र तो मुझे भी हुआ करता
चाहता था, लेकिन क्या करूं, तू पेट में पड़ रहा था, तेरे जन्म के चक्कर में मेरे पेट को चीरना पड़ गया था। तेरी परवरिश करते करते, तेरा ख्याल रखते रखते मैं अपना ख्याल रखना भूल गई थी। शायद तब आपको ये एहसास हो जाए, शायद तब आपका ज़मीर जाग जाए कि हाँ, ये वही हस्ती है जिसने अगर मुझसे मेरे बचपन में जब मैं 2-4 महीने का था, मुझसे अगर कुछ लम्हों के लिए तवज्जो हटा दी होती तो मेरा द एंड उसी वक्त हो चुका होता। ये हलीमा, ये हमारी बहन, बेटी, ये हमारे माशरे की औरत, प्रेगनेंसी का ये दौर जब शुरू होता है, जब आप और मैं पल रहे होते हैं इस बत्नी मादर में, तो तरह तरह की अज़ियतें और परेशानियां बर्दाश्त करती है। प्रेगनेंसी का 5वां 6वां महीना जब शुरू होता है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो होने लगती है, इसके ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। मां को अब मजीद तकलीफें, मजीद परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब ये ठीक से उठ नहीं पाती, ठीक से बैठ नहीं पाती, ठीक से कोई काम कर नहीं पाती। प्रेगनेंसी का 8वां 9वां महीना शुरू होता है। इस 9वें महीने में बच्चा अब फुल्ली ग्रोथ है, बच्चे की डेवलपमेंट फुल्ली हो चुकी है। अब इसकी मूवमेंट इतने बढ़ने लगती है, अब ये जो मूवमेंट करता है मां उसको महसूस कर सकती है। महसूस क्या, ये किक मारना शुरू करता है। बच्चा जो पेट में होता है, अब इसकी मूवमेंट इतनी बढ़ जाती है, मां कई दफा थकी हारी बेचारी आराम फरमा रही होती है, नींद में होती है। ये बच्चा पेट में कभी कभार इतनी जोर से लात मारता है, मां के मुंह से चीख निकलती है। इस चीख में, इस दर्द में, इस परेशानी में उठने के बाद अपने पेट पे हाथ रख के कहती है, लगिया बलाई फुटबॉल चुका गिंद लजिया मोज पनी विंदित। ये मां होती है। और अफसोस आज इसी मां को ओल्ड एज होम पहुंचा दिया है हमने। यह मोज आज बेकल बासन, इसी मां को आज हम बाइक पे पीछे बिठाते हैं तो 5 किलोमीटर में दिमो इसमें 5 ये वही मां है जिसने 4-4, 6-6, 8-8 बच्चों की परवरिश की, उनकी तरबियत की, और आज बेचारी बुढ़ापे में बिल्कुल अकेली, बिल्कुल तनहा, बिल्कुल बेसहारा। इसको एहसान फरामोशी नहीं कहेंगे तो और क्या कह सकते हैं। बहरहाल 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, लेबर पेन शुरू हो जाती है। ये लेबर पेन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी खतरनाक, इतनी अनबियरेबल, इतनी नाकाबिल बर्दाश्त पेन होती है। अगर किसी इंसान की कई हड्डियां एक साथ टूट जाए तो वो हड्डियों जो वो दर्द इन हड्डियों के टूटने से होगा, ये लेबर पेन उससे कहीं ज्यादा पेन देती है। मां इस पेन को भी बर्दाश्त करती है क्योंकि इसे एक नन्ही सी जान की फिक्र रहती है। अब आजकल नॉर्मल डिलीवरीज का भी तो जमाना नहीं रहा। अब डॉक्टर्स कहते हैं आपको अपने बच्चे की जान बचानी है, आपको अपनी जान बचानी है तो अब तेरे पेट को चीरना पड़ेगा। मां कहती है कुर्बान जाऊं अपने बच्चे पे, इसके लिए भी तैयार हूं। मां को बेहोश कर दिया जाता है, पेट चीर दिया जाता है, और इस तरह से ये बच्चा, इस तरह से आप, इस तरह से मैं इस दुनिया में आते हैं। इस दुनिया में आने के बाद ये बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट, कोई शऊर नहीं, कोई तमीज नहीं, कुछ कर नहीं सकता, हाथ पैर है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, एक अपनी किसी जरूरत का खुद ख्याल नहीं रख सकता। इसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है, और हर ख्याल रखने वाली सिर्फ एक मां होती है जो 24/7 अपने बच्चे की परवरिश में लग जाती है, जो 24/7 अपने बच्चे का ख्याल रखती है। ये बेचारी इस बच्चे के पीछे अपनी जरूरतों को भूल जाती है, इसकी परवरिश करते करते अपने वजूद तक को भूल जाती है। इसकी जिंदगी में इतनी काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स आती है जब ये अपनी बेसिक जरूरत, जो नींद एक बेसिक जरूरत है, उसको भी पूरा नहीं कर पाती क्योंकि इसे अपने बच्चे की फिक्र में रहती है, इसे अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है। और कई मर्तबा ये बच्चा जब बीमार हो जाता है तो जैसे मां के कलेजे में दर्द रहता है, या यही बच्चा जब 1 साल का होता है आगे के 4 दांत आने लगते हैं। अब ये दूध पीते पीते अपनी मां को बाइट करता है, मां की छाती पे बाइट करता है, मां के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।
माँ को इतना दर्द होता है, एक नाकाबिल बर्दाश्त पेन रहती है। अपने माँ को देखो, माँ के प्यार को देखो। अब माँ को पता रहता है मैं बच्चे को अगली बार दूध पिलाऊंगी, ये काटेगा तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। ये सब जानने के बावजूद भी अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करती। ये माँ का प्यार होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं कितना आपको बताऊं मां की कुर्बानियां, एक लिमिटेड टाइम में नहीं बता सकता। कलम की स्याही कम पड़ेगी मां की कुर्बानियों को तहरीर करते करते। लेकिन मुझे ये उम्मीद है एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा, एक ओवरऑल मां की कुर्बानियों का एहसास हुआ होगा।